Okay, so students, can you see the screen? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll start with textile design. What is textile design? First of all, I'll tell you what are the learning outcomes after you complete this course. Like by the end of this course, what will you be able to do? First thing, you will be able to recognize different fabrics, since you know that there are plenty of fabrics in the market, and before using them you should know what's their usage, what are their properties, their fall, where you want to use it, and what will be the best fabric for that. So first is you'll be able to recognize different fabrics. Development of fabrics according to industry requirements. Like सिर्फ fabric हमें देखना नहीं है, उसे बनाया कैसे, हो सकता है आप उस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप मिल्स में जाना चाहते हो, तो हर फैब्रिक का वीव, अब वीव क्या होता है, ये सारा का सारा जो डिटेल्ड पार्ट है वो सब हम इस कोर्स में पढ़ेंगे. डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट्स, अच्छा मैनुअली हम बनाते हैं, टेक्सचर्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हम आपको सॉफ्टवेयर्स भी सिखाएंगे कि आप डिजिटली आप कैसे प्रिंट्स बना सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर फास्टर. There are advantages and disadvantages of both manual and digital. So we'll be teaching you both because industry requires both of these. Various software design softwares which are for packaging also, like CorelDRAW. Tomorrow, if you come up with your own brand, you'll have a software which you have already learned for the packaging. You can design your own packaging, your logo, different softwares, Photoshop, Illustrator for print development. Now you have learned how to make prints. Now how you will put them onto the fabric? There are different techniques. स्क्रीन प्रिंटिंग है, रोलर प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग है, सब्लाइम प्रिंटिंग है, ट्रांसफर प्रिंटिंग है. सो हम आपको ये सारी डिटेल्स भी देंगे, आपको वो सब भी सिखाएंगे, बिकॉज यू नेवर नो इन विच इंडस्ट्री हु वांट्स टू लैंड. देन प्रिंट भी हो गया फैब्रिक पे. एम्ब्रॉयडरी भी बहुत सारी तरह की है, मैनुअल है, डिजिटल है, जिसको हम कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, मशीन एम्ब्रॉयडरी है. सो एम्ब्रॉयडरी की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो आपको इन डिटेल इस कोर्स में बताई जाएंगी. देन अब मार्केट तो हम जाते हैं, बट हम मार्केट जाके हम किस तरह से हम चीजों को देखते हैं कि आपको कल को अपना प्रोडक्ट सेल आउट करने में आसानी हो. तो हम आपको उन कीज को हम सिखाएंगे कि मार्केट स्टडी क्या होती है, डिफरेंट डिजाइनर्स की तरह आप कैसे सोच सकते हैं, अपनी कलेक्शन कल को बना के एट द एंड ऑफ द डे व्हाई यू आर डूइंग दिस इज मेकिंग योर ओन प्रोडक्ट्स एंड sell them in the market. Ultimate goal is that. Then development of a collection. आपको पूरी की पूरी खुद से कलेक्शन बनानी सिखाई जाएगी और आप वो बनाएंगे. That will vary depending upon the size of the product you are making. Then what are textiles? Am I okay? Like my speed is okay? Everyone is understanding? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, it's clear. Yeah. Yes, ma'am. So what are textiles? We'll start with that first. Textiles is a piece of cloth that is woven. I am sure इतना बेसिक सबको पता होगा. अच्छा, इसका यूसेज इज इन मेनी इंडस्ट्रीज, फैशन में है, होम में है, ऑटोमोबाइल में है, इंटीरियर्स में है. And especially India is famous for its textiles from different states, which I'll be telling you later in this presentation. Then study of textiles include developing of a fabric from a fiber. पहले फाइबर होता है, फाइबर से पहले कैसे यान बनता है, फिर यान से कैसे एक फैब्रिक वीव होता है, वीव होने के बाद उसकी प्रोसेसेस होती है, लाइक ब्लीचिंग होती है, श्रिंकेज होती है डाइंग से पहले, फिर डाइंग होती है या प्रिंटिंग होती है, फिर एम्ब्रॉयडरी, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट टू डेवलप अ फैब्रिक. तो लाइक देयर आर सेवरल स्टेजेस इन्वॉल्व टू get a ultimate outfit or whatever you want to design, a cushion cover, a scarf. So ये आपको सारी stages in detail यहाँ पे कराई जाएंगी. Then types of textiles क्या होते हैं? Natural textiles होते हैं, which are silk, wool, cotton. I'm sure सबको पता होगा. These are expensive also slightly, and these are based out of plants and animals. Man-made textiles होते हैं, which are also called synthetic textiles, rayon, polyester, nylon. Obviously these are synthetic, so these are much cheaper than the natural textiles. Then uses of textiles.
In fashion industry, first of all, it is being used vast, all kinds of apparel, Indian apparel, Western apparel, men's suit, female saris, lehengas, wherever you see, textiles play a major role. Then menswear ho gaya, shoes, acha accessories mein if you see there are bags, shoes, scarves, har jagah pe in fashion also textiles is there. Then home linen and interiors, table and kitchen linen, upholstery आपका sofa, आपका curtains, everything, bed linen is textiles. Automobile industry में car seat covers, mats, everything is textiles. Wedding in event industry, your tents, carpets, decor, everything. Hospital industry तक में bed sheets और ये curtains वगैरह, everything is textiles. Now, to like first of all I'll start with traditional Indian textiles. Like मैंने आपको बेसिस बता दिया कि आपका स्कोप कहाँ कहाँ है, आप इंडस्ट्री में आप कौन सी इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हो, ये सारी इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई. बट अब मैं आपको ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स बताऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम डाइज और हम प्रिंट्स और हम इन चीजों पे हम कैसे काम करेंगे इन फ्यूचर, हम मोटिव डेवलपमेंट कैसे करेंगे. तो आई जस्ट स्टार्ट विद इंडियन टेक्सटाइल. सो इसमें जो मैं आपको बेसिस बताऊंगी, इन सबके बेसिस आपको डिटेल में करिकुलम में बताए जाएंगे. जैसे इसमें सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट खादी. फर्स्ट ऑफ ऑल, खादी इज अ hand spun and hand woven fabric. What is hand spinning? What is hand weaving? That we'll talk about detail in the curriculum. Then khadi ki property kya hai? It's cool in summers and warm in winters. It's a natural fiber cloth. Then is kalamkari. Okay, so खादी में अब आपको पता लगा कि there will be involved weaving. अब वीविंग कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है. आपने डेनिम देखा है, डेनिम में डायगोनल लाइंस होती हैं, सो दैट इज ट्विल वीव. डेनिम आई एम श्योर सबके पास जीन्स होंगी, सो दैट इज अ डिफरेंट वीव. आपके घर में जो बेडशीट बिछती है दैट हैज अ डिफरेंट वीव. तो हम इस करिकुलम में हम वो सब चीजें भी पढ़ेंगे. देन कलमकारी is a technique, hand painting technique, which is based out of Andhra Pradesh in India, and it is of two types. Sri Kalahasti style, which is done by pen on a fabric directly, and then the colors are filled. I can see the first picture, it's shown. Then second style is Machilipatnam style, in which hand blocks are used to make the prints. In both the techniques, vegetable dyes are used. These are completely natural. So in this also, you will get to know a lot of motifs, like the motifs we use in Machilipatnam and Sri Kalahasti. So these will inspire you to create your own collections. You must have seen many designers taking inspiration from our old textiles and developing their own collections. So we will be giving you basis of these textiles as well. Then comes Banarsi silk. I'm sure everyone has heard about it. This is based out of Banaras, which is Varanasi in UP. So these are famous for its gold and silver zari. So now what is the development of zari? How is zari developed? That we will tell you. How is it gold, silver, and up kya hoti hai? Then motifs are very intricate. You can see इसके ऊपर कोई प्रिंटिंग नहीं है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है. ये जो मोटिव्स होते हैं ये वोवन होते हैं. अब ये कैसे वोवन होते हैं, इसके लूम्स कैसे होते हैं, जकार्ड वीविंग कैसे होती है, दिस इज ऑल जकार्ड वीविंग. इसके पंच कार्ड्स होते हैं. सो हर फैब्रिक की एक डिफरेंट वीव है, एक डिफरेंट प्रिंटिंग टेक्निक है. ये सारी चीजें आप इन डिटेल इस करिकुलम में पढ़ोगे. Then is Ajrak. Ajrak is based out of Kutch. There are two types of Ajraks. One is from Kutch and one is from Bamar. Technique is same, colors are same, just the regions are different. So what is Ajrak basically? Ajrak is mud resist. Like आप देख रहे हैं पिक्चर में, लेफ्ट वाली पिक्चर में आप देखो कि ब्लॉक से पहले मड में डिप करके फैब्रिक के ऊपर मड से रेजिस्ट करा. तो जब वो एरिया मड से रेजिस्ट हो गया और फिर हम उसको दूसरे फैब्रिक में डाई करेंगे तो जो कलर होगा वो जो अनरेजिस्टेड एरिया है वो पकड़ेगा. उसके बाद इसे n नंबर ऑफ टाइम्स पानी में धोया जाता है.
तो मड उतरेगी। तो जब मड उतरी तो जो खाली एरिया था वो सारा का सारा रह गया। सो दैट इज कॉल्ड resisting printing, mud resist printing method. And this is also hand block printed। और इसमें भी आप 3-4 कलर्स कर सकते हो। सबसे पहले जैसे बेस फैब्रिक है, नेचुरल फैब्रिक, उसको रेजिस्ट करा, उसके बाद एक कलर में डाई किया। फिर दूसरा, जैसे अब ये आप राइट वाली पिक्चर देखो, इसमें 3-4 कलर्स हैं। तो फिर जैसे ब्लू में रेजिस्ट करा, ब्लू में डाई किया था, फिर ब्लू को रेजिस्ट किया, देन रेड में डाई किया। सो ये सारे डेवलप भी नेचुरल कलर्स से होते हैं। कलर्स लाइक इंडिगो, इंडिगो से डेवलप होता है। रेड जो है वो व्हाट डू यू कॉल, नेल्स, नेल्स क्योंकि रस्ट छोड़ती है तो उससे रेड कलर डेवलप होता है। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी, क्योंकि आप इसके मोटिव्स देखो। Definitely you can make these motifs digitally also, you can make your digital collection out of it. These are for you to only understand कि कैसे placement होती है, कैसे हमारी history है, हमारे traditional Indian textiles हैं। Then is बांधनी। बांधनी is also called बंधेज, and ये दोनों राजस्थान and गुजरात में होती है। In Rajasthan it's called बांधनी, in Gujarat it's called बंधेज। Okay, so this is also tie and dye method, which is also called a resist method। धागे से पहले हम व्हाइट फैब्रिक को टाई करते हैं, बाकी सब कुछ डाई करा तो रेजिस्ट क्या हुआ, जो व्हाइट एरियाज थे। दिस इज ऑल्सो रेजिस्ट मेथड बट फ्रॉम अ थ्रेड। देन ट्रेडिशनली डन, पहले ये होती थी कॉटन, मलमल और मसलिन में, बट अब आप जॉर्जेट्स में भी देखोगे, आप इसको क्रेप में भी देखोगे। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शिबोरी। इसके भी जो मोटिव्स होते हैं, in this picture you can see it's a woven fabric, उसके ऊपर टाई एंड डाई कर रखी है। सो ऐसे ही अलग अलग डिजाइनर्स ने लेवल अप करा हुआ है चीजों को, वैसे ही आप लोग भी कर सकते हो। यू कैन मिक्स टू थिंग्स टुगेदर। सो दीज आर जस्ट द बेसिस। आप दो चीजों को आप मिक्स भी करके आप चीजें डेवलप कर सकते हो। इनमें से आप मोटिव की इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप टेक्निक्स की, कलर पैलेट की, आप किसी की भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। Then is chikankari. Chikankari, I'm sure everyone knows. It's based out of Lucknow, and it's traditionally it was done on a cotton or organdy fabric, but these days you'll see them on pure crepe, pure georgettes also, and it's a darning stitch. What is a darning stitch? जिसे हम बेसिकली घर में बोलते हैं ना रफू करना, तो वो थ्रेड्स को रनिंग स्टिच कर करके वो रफू करते हैं। जैसे अब हम, वैसे वो एक एम्ब्रॉयडरी होती थी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेरिंग बोन स्टिच। आप बैक साइड से जब आप इस फैब्रिक को देखोगे, इट्स हेरिंग बोन। नाउ ये जो एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स है, ये भी आपको इन डिटेल बताई जाएंगी। आपको अभी सिर्फ ये ओवरव्यू दिया जा रहा है चीजों का, ये सब आप इन डिटेल इस करिकुलम में पढ़ेंगे, इनके टेक्निक्स पढ़ेंगे। यू विल जस्ट नॉट स्टडी अबाउट दीज ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, दीज आर द बेसिक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमें इस करिकुलम में ये टेक्निक्स का पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, बहुत वास्ट तरीके से बताई जाएंगी। देन जामदानी वीव। Jamdani weave is based out of West Bengal. Traditionally, it was done on cotton sarees. Cotton sarees were made out of cotton yarns. इसमें if you can see, first of all, I'll have to tell you a little about weaving. The fabric is made out of two types of yarns. One type is same, basically the one kind of yarn is put as a warp, which is like vertical threads, and one is put as horizontal, which is called weft. So जब ये warp and weft मिलते हैं, interlacing of fabric is called weaving. तो जब ये धागे आपस में इंटरलेस होते हैं, इन्हें बोला जाता है वीविंग। तो ये इंटरलेसिंग के टेक्निक्स डिफरेंट होते हैं। प्लेन वीव होती है, बास्केट वीव होती है, ट्विल वीव, एज आई टोल्ड यू, आपके डेनिम्स जो है वो ट्विल वीव होते हैं। ये सारी वीव्स अलग अलग होती हैं। अब जब ये लोग लूम पे जब वीवर्स वीव करते हैं, तो उसमें यू कैन सी इन द राइट पिक्चर, उनके हैंड में एक शटल है, जो ये धागे को, जैसे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ना, ऑरेंज कलर का धागा लिपटा हुआ है, दीज आर कॉल्ड शटल्स। ये ऐसे एक तरह के धागे में घुमा के ये मोटिव बनाते हैं। आप ये देख रहे होगे राइट साइड पे, ऐसे मोटिव कहीं पे कट नहीं रहा,
ये एकदम घूम घूम के वापस आ रहा है. दिस इज इन कंटिन्यूएशन. दिस इज कॉल्ड जामदानी. बट क्या मैं डिटेल में आपको करिकुलम में डेफिनेटली बताऊंगी. अभी मैं आपको एक क्रक्स दे रही हूँ इसका. ट्रेडिशनली डन ऑन अनब्लीच्ड कॉटन yarn. ओके. देन इज कांथा. Traditionally, kantha was done to reuse the fabrics. Like जो old ladies होती थी, उनके पास मलमल की साड़ीज होती थी, तो वो लेयरिंग करती थी. They used to make blankets for the newborns. लेकिन उनके पास 3-4 मलमल की साड़ीज हो गई. देन फिर आप देख रहे हैं छोटे छोटे रनिंग स्टिचेस, उनसे रनिंग स्टिचेस से कर करके वो उसकी ब्लैंकेट्स बनाती थी फॉर द न्यूबॉर्न्स. तो अब ये ट्रेडिशनली करते थे टसर पे फॉर द फैंसी फैब्रिक्स. बट इनका जो यूसेज होता था वो ब्लैंकेट्स के लिए ज्यादा होता था ट्रेडिशनली. अब ये ज्यादा टसर पे भी चलता है एंड इट्स जस्ट रनिंग स्टिच. उसी की थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करके डिजाइनिंग होती है. बहुत ही सिंपल मोटिव्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव्स आई एम श्योर सबको पता होगा, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन. जो ये आप देख रहे हैं ना, छोटी सी फिश बनी हुई है, ये सर्कल बना है, ये बर्ड बनी है, दीज आर कॉल्ड मोटिव्स. जो छोटे छोटे डिजाइन होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड मोटिव्स. तो इसके जो मोटिव्स होते हैं ना, बड़े सिंपल. क्योंकि लेडीज ओल्ड होती थी जो इसको बनाती थी, उनको आसपास में बर्ड दिखा, बर्ड बना दिया. सन दिखा, सन बना दिया. तो दिस यूज्ड टू बी डन दैट वेज. ओके. सो मैंने आपको बहुत थोड़े से अभी सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल्स बताए हैं. आपको करिकुलम में बहुत सारे टेक्सटाइल्स बताए जाएंगे. उनकी क्या क्या टेक्निक्स चल रही हैं, क्या क्या टेक्निक्स को डिटेल में करते हैं, वो बताया जाएगा. फिर हम, अगर आपने मोटिव, मैंने आपको बताया क्या होता है, हम मोटिव को डेवलप कैसे करते हैं. करिकुलम में आपको ये सबसे पहली चीज जो डिजाइन में आती है वो ये आती है. सपोज मैंने इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ये फ्रॉग. फ्रॉग आपने देखा नेचर में, आपने उसको अपनी ड्राइंग से आपने उसे एक तरह से बनाया, फिर उसे आपने थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया, फिर और किया, फिर वो एक आपका मोटिव बन गया. ये जैसे लीफ है, लीफ को उन्होंने कैसे मोटिव बनाया. फिर अब ये आपका जो सिंगल सिंगल है, ये मोटिव बना है. इसको आप कैसे प्रिंट बनाने के लिए आप उसे कैसे डेवलप करेंगे. लाइक इसको फ्लिप करा और फ्लिप करा, इसके अलग अलग रिपीट्स होते हैं, इसे बोलते हैं पैटर्न. किस पैटर्न में आप रिपीट कर रहे हैं. जैसे कि 80 डिग्री अप, 80 डिग्री डाउन, ऐसे करके. जैसे अब आपने ये देखा रिवर से उन्होंने कैसे मोटिव बना के उसको रिपीट में किया है. सो ये रिपीट को करना बोलते हैं पैटर्न. सो दिस इज मोटिव एंड पैटर्न डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी ना, प्लीज नोट इट डाउन. बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपसे जरूर पूछूंगी, देन आई क्लियर एवरीथिंग. देन अभी मैंने आपको डिजिटल में पैटर्न बनाया था. अभी मैंने आपको जैसे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग बताया, अजरक में बताया. तो अगर आप देखते हो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, एक ब्लॉक है तो वो भी तो एक मोटिव है ना. मोटिव को वो किस पैटर्न में रिपीट कर रहे हैं. जैसे इसमें है, ये ब्लॉक जो है वो एक मोटिव है, बट इसको कैसे रिपीट किया जा रहा है, इट इज अ पैटर्न. द पर्सन इज डेवलपिंग अ पैटर्न ऑन टू द फैब्रिक. ओके. आपका मोटिव बन गया, आपका पैटर्न बन गया. अब उसको हम प्रिंट कैसे बनाएंगे. आपने जब उसे डेवलप करा, आपने उसे 2-3 वेरिएशंस में आपने पैटर्न बनाए. एक किस एंगल में बनाया, एक किस एंगल में बनाया, एक को फ्लिप किया, एक को कुछ किया. तो आपके अलग अलग तरह के पैटर्न्स बन गए. अब उन पैटर्न्स को आप अपैरल्स पे कैसे उतारोगे, उसके लिए कितनी सारी टेक्निक्स है. अच्छा, अब जैसे आपने देखा प्रिंट डेवलपमेंट है ये, इसमें आपने हर स्टेज देख ली. अब इसमें डिपेंड करता है, जैसे अब इसमें यू कैन सी 4 कलर्स. इस पैटर्न में यू विल से नो मैम देयर आर ओनली 3 कलर्स, बट आई वुड से देयर आर 4 कलर्स बिकॉज व्हाइट इज आल्सो अ बेस कलर. आप अपने प्रिंट में आप इसे कैसे यूज करोगे. इफ यू आर यूजिंग अ व्हाइट फैब्रिक देन इट्स फाइन, देन ये कलर काउंट नहीं होगा. इफ इट इज सम अदर फैब्रिक यू नीड टू क्रिएट अ बेस कलर फॉर द प्रिंट. ओके. सो देन अगर हम डिजिटल में बनाते हैं, डिजिटल में देयर इज अ डिफरेंट टेक्निक. आप कितने कलर्स ले, डिजिटल में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कलर्स. आप कितने भी कलर्स कर सकते हो, आप ग्रेडेशन कर सकते हो, आप ब्लेंडिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो. बट अगर आप स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हो, स्क्रीन मतलब प्रिंटिंग में क्या होता है, अलग अलग स्क्रीन्स बनती हैं. सपोज जैसे कोई अगर प्रिंट है जिसमें 3-4 चीजें हैं,
I'll just show you an example. जैसे सपोज ये है अजरक वाला, बट ये ब्लॉक प्रिंटिंग में बना हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। इसमें 3-4 कलर्स हैं, तो मैं 3-4 कलर्स के हिसाब से, जैसे रेड कलर इन सर्कल्स में आ रहा है, ब्लैक कलर थोड़ा सा बेस में आ रहा है, और ब्लू कलर थोड़ा सा बीच में छोटे छोटे मोटिव्स में आ रहा है। तो आई डेवलप 3-4 स्क्रीन्स जिसमें मेरे वही डिजाइन उन स्क्रीन में बने होंगे जिसमें मैं सिर्फ रेड कलर चाहती हूँ। फिर दूसरी स्क्रीन पे वही डिजाइन बना होगा जहाँ पे मैं सिर्फ ब्लू कलर चाहती हूँ। तीसरी स्क्रीन पे सिर्फ वही डिजाइन बना होगा जहाँ पे मैं ब्लैक कलर चाहती हूँ। तो जब हम फैब्रिक के ऊपर एक स्क्रीन लगाएंगे, तो मैंने सपोज रेड कलर पहले किया, तो स्क्रीन के डिजाइन के अकॉर्डिंग जहां जहाँ पे रेड कलर आना चाहिए था आ गया। फिर वो सूख जाएगा, उसके ऊपर मैं ब्लू डालूंगी, फिर वो सूख जाएगा, उसके ऊपर मैं ब्लैक डालूंगी। दिस इज हाउ इट्स डन। तो हमें डिसाइड करना होता है प्रिंट बनाने के बाद दैट विच इज द इजीएस्ट मेथड फॉर द प्रिंटिंग, द मोस्ट इनएक्सपेंसिव मेथड। ये सारे प्रिंटिंग मेथड्स आपको इस करिकुलम में बताए जाएंगे। किसी को कोई डाउट है कहीं पे भी? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? Yes, ma'am. ओके। देखो, जो एक बेसिक इसका बताना था मैंने वो बताया। एनीबडी हैज एनी डाउट हियर? No doubt, ma'am. नो डाउट। सो इस कोर्स को हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि आपको इंडस्ट्री में वेयर एवर यू लैंड, हो सकता है कि somebody wants to assist a designer, somebody wants to open their own label, somebody wants to open maybe get into a mill, or like there is a lot of scope. I have just explained a lot of scope. किसी को वेडिंग इंडस्ट्री में जाना है, या